सारे पीछे आ जाओ यार भाई ملک صاحب یہ اسٹیپ کا شاط سے نا پیپتی سمودری خاموش خاموش میرا خیال نہ کیونکہ لوگوں کو جو تکلیف ہو رہا ہے آپ لوگ نیچے آ جائیں ابھی شروع کر دو یار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چند منٹ پہلے آپ لوگوں سے سارے تفصیل بتا دیا ابھی صرف آپ لوگ جب راستے میں تھے ہم جا رہے تھے میں نے سمجھا کہ میں میڈیا کے سامنے وہ صحیح طور پہ دیکھ لے کہ وہ جو جناب کمال صاحب نے کہا کہ گنڈوں نے غنڈہ گردی کی ہے اسی بنیاد پہ انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے تو یہ قوم کے گنڈے یہ ہے آج اتنی شریف گنڈے اتنے نرم گنڈے میرے خیال دنیا میں معصوم گنڈے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جا کر کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں حکومت اپوزیشن پہ الزام لگا رہا ہے کہ اپوزیشن والے عوام کو تکلیف دیتے ہیں تو مجھے بتائیں ہمارے آج ہم نے کال کر دیا کارکن کو ہم نے بلا لیا پورا کوئٹہ شہر میں آپ نہیں سنبھال سکتے لیکن 17 ارکان اسمبلی اور اراکین اسمبلی ہے آپ کے بقول یہ دہشت گرد غنڈے ہیں لیکن یہ 3000 نفری مجھے ابھی فکر آ گیا 3000 کے نفری آپ نے ڈالا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بختر بند گاڑیاں وہ گاڑی ہے ذرا اس سائڈ پہ ہو جاؤ اس سائڈ پہ ہو جاؤ وہ بختر بند گاڑی جس وہ بڑا نہیں وہ گاڑی ہے وہ ہے تو ادھر کھڑی تھی وہ میرا خیال چلا گیا نہیں وہ بڑے والے ادھر کھڑے تھے تو یہ گاڑی وہ گاڑی ہے وہ بختر بند وہ بختر بند ہے وہ بختر بند ہے وہ بختر بند ہے یہ سارے وہی گاڑیاں ہیں جو اس دن ان دہشت گردوں پہ اور ان غنڈوں پہ انہوں نے چڑھا دیا قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ حکومت خوش کا ناخن لے لیتے ہیں لیکن آج 3000 نفری پورا جو انہوں نے یہ بختر بند گاڑیاں جو کھڑی کی ہے اور اتنی زیادہ اداروں کے لوگ تو ابھی سری نگر آپ کو بھول جائے گے کاش ہماری یہ نفری یہ بختر بند گاڑیاں کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے وہ استعمال کر لیتے تھے کاش یہ بختر بند گاڑیاں دہشت گردوں کے مقابلے میں وہ استعمال کر دیتے تھے کاش یہ بختر بند گاڑیاں اور یہ لاکھوں کے ہزاروں کی نفری وہ ان لوگوں کے استعمال کرتے ہیں آج جمہوریت کے لمبرداروں پہ آج جمہوریت کے جو ان کے ہاتھ سے یہ صوبہ بنا ہوا ہے ان کے ہاتھ سے اس صوبے کے بجٹ بنا ہوا ہے ان کے کاوشوں سے آج ہم پاکستان کے اندر ایک آزاد قوم کی زندگی جو گزار رہا ہے لیکن آج انہی کو اور انہی کے نمائندوں کو ایف آئی آر کاٹ کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کاٹ لیا ایف آئی آر لیکن اگر آپ نے ایف آئی آر کاٹ دیا آج میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا ہوں ہمارے ایم پیز آج ہمارے اراکین اسمبلی اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں ملک سکندر صاحب کی قیادت میں اور وہی خواتین بھی اس میں شامل ہے وہی لوگ جن کو آپ ایف آئی آر کاٹے تو قانون کے حوالے آپ کو کر دیتے لیکن اتنی بڑی پروسیس کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کہتے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ حکومت دہشت گرد ہے یہ انتہا پسند ہے یہ ان لوگوں کے کہنے پہ جو لوگ ادھر جمہوریت نہیں پھیلنا چاہتے جو سیاست نہیں پھیلنا چاہتے اور یہاں اس طرح کے لوگ کہ اس کو کوئی سیاست کا سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ کیا اور جام کماسا کی بے عزتی ہوئی مجھے بتائے ایک گملہ بھی جام کے آنے سے پہلے
अगर टूटा है, उस दिन भी ये सारे नफरी इधर मौजूद थे, इससे ज़्यादा फोर्सेस इधर मौजूद थे। लेकिन वो कहते हैं कि ताला लगाया है, क्या ताला? इतने लोगों ने एक ताला नहीं तोड़ सकता था, दो बंदे गेट पे बैठे थे। लेकिन वो खामखा जब उन्होंने अपने कंटेनर और अपने पथरगा गाड़ियों की जो चढ़ाई की, हमारे अराकियों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अब हमारे लोगों के जो कत्ल करने का मंसूबा है वो एफआईआर तक नहीं करते, वो इतलाई रिपोर्ट तक नहीं कबूल करते हैं। लेकिन जालिमों ने हमारे नुमाइंदों को यह कर दिया। लिहाजा अब मीडिया इस बात के गवाह हो, बलूचिस्तान के मीडिया से मेरी गुजारिश है कि तस्वीर का रुख तब्दील कर लो, मजलूमों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा दो। लेकिन यहाँ आज जो है मजलूमों को जालिम करार दिया जा रहा है, वो दिखाना चाहते हैं, और जालिमों को और मजलूमों को जालिम करार दिया जा रहा है। हमारे एफआईआर नहीं करते हैं, हमारी इताई रिपोर्ट तक नहीं करते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पे मैं अभी हम जा रहा है और हमारे मुतालिबा ये है, खुदारा आवाम को तकलीफ न दे दिया जाए, फोर्सेस को हटा दे, बख्तरबंद गाड़ी को हटा दे, कंटेनर्स को हटा दे, आवाम को तकलीफ न दे दिया जाए। और आवाम के अगर यही तकलीफ जारी रहे तो फिर देख लेते हैं, अगर आप लोग दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आवाम को तकलीफ देते हैं, हम आवाम को कभी तकलीफ नहीं देते। और आवाम को सहूलत के लिए इस कटपतली हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे, और इस वजह से आवाम के लिए हम ये कुर्बानी देते हैं कि आज हम अपने कौम के नुमाइंदे वहाँ थाने में ले जाते हैं। वाखिर दामाना ये उनको दे दो। नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जमात जो एक दो मिनट शरीक है उनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल से देख रहा हूं कि कहा जा रहा है कि अपोजिशन फंड के लिए एहतजाज कर रही है। असम्बली का तमाम रिकॉर्ड गवाह है। झूठ इतना बोला जाए कि जिसका कोई सर पाँव हो। ये इस तरह की हुकूमत है जिस तरह रेलवे का एक फोरमैन होता है और उसके साथ कुली होते हैं, ये सारे नौकर हैं। कल कुली भी निकल गए थे कि जी ये हमने बुरा किया। 3 साल तक हमने बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक देने की बात की है। गवाह है असेंबली। हमने बाप पार्टी को फंड देने की मुखालफत की है, ये असेंबली गवाह है। हमने बाप पार्टी के वर्करों को करोड़ों रुपए सरकार के एक्सचेकर से इनको रिलीज करने के लिए हमने एहतजाज किया है, ये असेंबली गवाह है। हमने इंसानियत को परवान चढ़ाने के लिए हमने मुतालबा किया है, हमने करप्शन रोकने के लिए मुतालबा किया है, ये असेंबली गवाह है। हमने बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए मुतालबा किया है, ये असेंबली गवाह है। हमने बेरोजगारी को 1 साल 1.5 साल पहले इंटरव्यूज हुए हैं, लेकिन पैसे बराबर नहीं पड़ते, इसलिए वो अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं। यहाँ पे जिन महकमों में अपॉइंटमेंट्स हुए, इस वज़ीर आला ने, इस फोरमैन ने, इस नौकर ने खुद असेंबली के अंदर कहा कि इसमें इंक्वायरी होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ पे पैसे लिए गए, अपेरेंट पैसे लिए गए। आप लोग भी गवाह हैं, पूरा बलूचिस्तान गवाह है। हमने एहतजाज इस पे किया कि करप्शन को रोक दो, ये कल हमारी नस्ल को तबाह करेगा। इन लोगों को सजा दो। एजुकेशन में, हेल्थ में जो भी करप्शन हुई है उसका कोई आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए। हमारा ये मुतालिबा है, क्योंकि ये सरजमीन हमारी है, ये लोग हमारे हैं, ये कौम हमारी है। हम इसको ऐसा यहाँ ऐसा जुल्म होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। यही हमारा एहतजाज रहेगा और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा
जब तक ये कठपुतली, ये नौकर लोग यहाँ से गायब नहीं होंगे। और अब हम जाएंगे, हमें तो उन्होंने, हमारा FIR 18 तारीख का है, आप लोग गवाह रहे हैं। हमारा एक साथी इस वक्त रेफर हो रहा है कराची उस इलाज के लिए। जालिमों, तुमने इतना जुल्म किया, हमारे बाकी जो जख्मी साथी हैं, ये तो तुमको तो खुदा ने ये अकल नहीं दी कि कम से कम लोग जाके तीमारदारी करते हैं और तुम नशे में हो, तुम्हारी ये नशा अब काफूर हो जाएगा। हम अभी जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज इस जालिम हुक्मरानों से हमारी अपनी जान भी छुड़ाएंगे और आपकी जान भी छुड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। असल बात ये है, एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो फोर्सेस का नुमाइंदा IG बलूचिस्तान, ये जो पुलिस का नुमाइंदा IG बलूचिस्तान, हम उससे कहना चाहते हैं कि आप फरीक मत बन जाओ। अगर वाकई आप IG बलूचिस्तान है तो जिसके खिलाफ हमारा FIR हुआ है तो FIR भी आप दर्ज करें, आप जाकर उसको गिरफ्तार करें। हम तो अपनी मर्जी से जा रहे, आप उधर भी हमें नहीं छोड़ रहे। हम आपकी कानून की पासदारी कर रहे, आप उनके लिए भी हमको नहीं छोड़ रहे। लेकिन जिसके खिलाफ हमने FIR किया है, IG साहब, अगर आप जाम का IG है, अगर आप जाम का मुलाजिम है, अगर आप जाम का नौकर है तो बेशक अपना काटे। अगर आप बलूचिस्तान के मुलाजिम है, अगर आप बलूचिस्तान के IG है तो फिर ये होना चाहिए कानून से कोई बालातर नहीं है। फिर आपने हमारे FIR भी दर्ज करना था, आप इतने डरपोक क्यों हुए? आपके पास तो मौलाना नवाज़ी के लिए 3000 फोर्स आप ला रहे हैं, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते? आप फरीक है और ये जो आप फरीक बने हुए हैं, इंशाल्लाह आपसे ये जवाब अल्लाह मांगेगा। और दूसरा एक और चीज जो आजकल हो रहे हैं हमारे साथ, और वो जो मीडिया पे आ रहे हैं कि ये लोग अपने करप्शन के लिए PSDP में अपने वो चीज डाल रहे हैं। अगर इस तरह करप्शन की बात थी तो हम आपकी हुकूमत में शामिल होते, फिर हम अपोजिशन में नहीं बैठते। हम आवाम के लिए मांग रहे हैं, जिस तरह कि आपने अपने हल्के के लिए 12 अरब रुपए आपने अपने हल्के के लिए रख दिए, तो अगर हम ये पैसे लसबेला में कासम रंजो को दे दे तो फिर आपका क्या होगा? आपने हमारे इलाकों में मुदाखलत की और आपने उन लोगों को ये फंड रिलीज किया 70 करोड़ पे, 1.5 अरब रुपए, जिसमें आपका करप्शन भी उसमें मुलव्वस है। हम अभी जा रहे हैं, बहुत पुरअमन तरीके से जा रहे हैं। मैं PTM के दोस्तों का, हमारे साथ जो आज शरीक हुए और खासकर ये ख़वातीन का, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। वो सलाम। दोस्तों, यकीनन आज जाम की फाशिस्ट हुकूमत का चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने निहत्ते मुकद्दस ऐवान के मेंबरान के खिलाफ FIR किया और हम जा रहे हैं गिरफ्तारी देने। दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि जाम के फाशिस्ट हुकूमत ने किस तरह मेंबरान असम्बली पर बख्तर बंद गाड़ी चढ़ा दी। हमारे दोस्त जख्मी हो गए। अब इनको पता चल जाएगा कि अपोजिशन क्या है। जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये पार्टियां अवाम की ताकत है और इनको अवाम के ताकत का पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया।